خدا کا کلام آپ اور میں آج اس نئے دن کے لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کے لیے بھی کہ خدا نے آج ایک نیا دن ہمیں دیا ہے۔ نیند جو ہے وہ ایک چھوٹی موت ہوتی ہے۔ جب ہم سو جاتے تو ہمیں نہیں پتہ لگتا کیا، تو اس چھوٹی موت میں سے خدا پھر سے ہمیں اٹھا لیتا ہے۔ سو جانا ایک چھوٹی موت ہے اور موت ایک لمبی نیند ہے، یہ ہے دونوں میں فرق یہ ہے۔ اور خدا ہمیں نام دے کر کے جگا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے کہ اٹھو سویرا ہو گیا ہے۔ خدا کا دھنیہ واد کرو، خدا کی آشیش کے لیے اس کا دھنیہ واد کرو، خدا کی برکتوں کے لیے اس کا دھنیہ واد کرو۔ اگر آ جائیں گے کیا میرے پاس کام ہے؟ تو خدا آپ کو بہت زیادہ برکتیں دے گا۔ خدا کا کلام ہے، خدا کا پاک اور پوتر وچن ہے، جہاں بولا جاتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ عام آدمی کا بولا ہوا شبد نہیں ہے، یہ خدا کا شبد ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کی باتیں ہیں۔ کل میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ خدا کے حکموں کی قدر نہیں کی گئی، خدا کے حکموں کو توڑ دیا گیا، وہ تختیاں توڑ دی گئی، خدا کا کلام بکھیر دیا گیا، خدا کا وچن، خدا کا حکم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ خدا کا کلام جو خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے آپ لوگوں کے لیے دیا وہ زار زار ہو گیا۔ ہم نے خدا کی پہچان کو نہیں جانا، ہم نے خدا کے کلام کو نہیں جانا۔ اس کا اثر آگے میں بتاؤں گا کیا کیا ہوا۔ جس شام ایسا ہوا، مائی ڈیئر فرینڈ دھیان سے سنیے گا، جس شام ایسا ہوا اس شام کو اس لوگوں کے شیور میں کوئی چراغ نہیں جل پایا۔ یاد رکھیے گا، وہ لوگ اس گناہ کو کرنے کے بعد، تختیاں توڑ دینے کے بعد، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پائے، وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ نہیں پائے، کیونکہ ان لوگوں سے ایک بہت بڑا اور بھاری گناہ ہو چکا ہے۔ اب گناہ تو ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، شیور میں ایک بھی دیا، ایک بھی چراغ نہیں جل پایا، رات بڑی مشکل سے کاٹی کہ صبح بھور ہوگی، پھر سے موسیٰ کے پاس جائیں گے، معافی مانگیں گے تاکہ وہ خدا کے پاس جا کر کے ایک بار پھر سے ہمیں معاف کر دے۔ خدا کا کلام ہے، خدا کی باتیں ہیں۔ دوسری صبح جب بڑی مشکل سے رات کاٹی انہوں نے، اور رات جب کٹ گئی، صبح ہو گئی، تو سب لوگ اکٹھے ہو کر کے پھر سے موسیٰ کے پاس گئے۔ تم نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، تم لوگوں نے بہت بھاری گناہ کر لیا ہے، تم نے خدا کے حکموں کو توڑ ڈالا ہے۔ اب میں پھر سے یہوہ کے پاس جاؤں گا، پھر سے میں خدا کے سامنے منت کروں گا، دعا کروں گا اور تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ تب موسیٰ خدا کے پاس سینے پہاڑ پر گیا، جھک گیا، گر گیا خدا کے سامنے، اپنے آنسو بہائے، گڑ گڑا کے رویا، توبہ کی اور معافی مانگی۔
निर्गमन की किताब है, उसका 32वां अध्याय है और फिर से 32 आयत। मूसा खुदा के सामने गिड़गिड़ाया, रोया, आंसू बहाए और कहा, अब तू उनका गुनाह माफ कर दे। जैसे जैसे हम कलाम में आगे बढ़ रहे हैं, सुनने वाले कम होते जा रहे हैं। ये माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, ये खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र वाणी। हर एक बशर का फर्ज है कि जब खुदा का कलाम होता है, जब खुदा की वाणी होती है, तो सुन। स्कूलों के पास से जब अपना नेशनल एंथम होता है तो हर एक जाने वाला सावधान खड़ा हो जाता है। लेकिन खुदा का कलाम हो रहा है तो कोई सावधान खड़ा नहीं होता। वो तो देश से बढ़ के है ना, वो तो देश की नेशनल एंथम से बढ़ के है, क्योंकि खुदा का कलाम है, खुदा की बात है। 32 की 32 पढ़ें। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, अब तू उनका पाप क्षमा कर दे। एक बार, 2 बार, 3 बार उसने खुदा के सामने कहा, इनका गुनाह माफ कर दे। देखिए खुदा के बंदे जो हैं वो आप लोगों के लिए किस तरह जा करके गिड़गिड़ाते हैं खुदा के सामने। आप समझते हैं ऐसे ही घूम रहा है, वैसे ही कह रहा है। खुदा के बंदे आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं, खुदा इनके गुनाहों को माफ़ कर दे। ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आज खुदा की हजूरी में आने वाले लोगों जो नहीं आए हैं, जो नहीं सुन पा रहे हैं, खुदाया इनके गुनाह को, इनकी गलतियों को माफ़ कर दे। वो गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा और खुदा खामोश रहा। वहाँ खामोशी छा गई। मूसा और खुदा के बीच में वार्तालाप बंद हो गया। वो गिड़गिड़ा रहा था, वो आंसू बहा रहा था और खुदा खामोश। फिर मूसा ने फिर कहा, खुदावन या तो तू इनके गुनाह जो हो गया है उसे माफ कर दे, या फिर अपनी जिंदगी की किताब में से मेरा नाम जो है वो काट दे। कैसी कुर्बानी है, कैसा विश्वास है। मोसेस ने खुदा से कहा, या तो तू इनका गुनाह माफ कर दे, नहीं अगर तू खुदा इनका गुनाह माफ नहीं करता है तो अपनी जिंदगी की किताब में से मेरा नाम काट डाल। अब क्या हुआ? खुदा को उनका गुनाह माफ करना पड़ा। पढ़ेंगे कहाँ लिखा हुआ? पढ़िए 32 को पूरा कीजिए। नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। नहीं तो अपनी पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। या तो तू गुनाह माफ कर दे या फिर मेरा भी नाम काट दे। तो खुदा को मजबूरन उनका गुनाह माफ करना पड़ा। यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है 33वीं आयत में, अब जवाब देखिए क्या होगा। या तो तू इनका गुनाह माफ कर दे या फिर मेरा नाम अपनी जिंदगी की किताब में से निकाल दे। 33वीं आयत पढ़िए जी। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। पहली शिक्षा है आज के वचन कि जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मेरे विरुद्ध गुनाह किया है, मेरे हुक्मों को नहीं माना है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम अपनी जिंदगी की किताब में से काट दूंगा। आज के वचन की पहली शिक्षा कि जो गुनाह करेगा उसी का नाम जिंदगी की किताब में से काट दिया जाएगा। अब हमें समझ लेना चाहिए कि मुझे
गुनाह नहीं करना, मुझे पाप नहीं करना, मुझे बुरी युक्तियाँ नहीं बनानी है, नहीं तो जिंदगी की किताब में से आपका नाम कट जाएगा। ढूंढते रह जाओगे किताब में, वो किताब में नाम नहीं मिलेगा, और अगर नाम ना मिला तो आपको दाखिला भी नहीं मिलेगा। तब खुदा ने मूसा से कहा, जैसे पहले मैंने तख्तियाँ तुम्हें दी थी, वैसे ही फिर से तो तख्तियाँ बना ले। मैं फिर से अपने हाथों से उन वचनों को लिखूंगा, मैं फिर से उन हुक्मों को लिखूंगा। दोबारा खुदा ने माफ़ कर दिया। अब आप माफ़ किए हुए लोग हो। 34 की पहली है, खुदा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 तख्तियाँ और बना ले, और जो वचन मैंने उन पर लिखा था मैं फिर से अपने हाथों से लिख दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से तख्तियाँ बन गई, फिर से कलाम उन तख्तियों पर लिख दिया गया, फिर से खुदा ने आप लोगों पर रहम किया, फिर से खुदा ने आप लोगों को अपने गले लगाया, फिर से खुदा ने आप लोगों के गुनाहों की खातिर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया है। खुदा ने फिर से आपको प्यार किया है, फिर से आपको हुक्म दिए गए हैं, फिर से आपको अपनी नज़दीकी में ले लिया गया है। खुदा ने फिर से आप लोगों को बहुत बड़े गुनाह के बाद भी आपको गले लगा लिया है। मूसा को फिर से खुदा ने वो तख्तियाँ सौंप दी, और मूसा बहुत खुश हुआ। उन तख्तियों को लेकर के वो फिर आया, पहाड़ से उतर रहा है, और लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो दोनों हाथों में तख्तियाँ लिए हुए सीने पहाड़ से नीचे उतर रहा है। मूसा बदल गया। अब मूसा वो मूसा नहीं था, वो एक बदला हुआ मूसा था। अब उसका रंग रूप जो था ना, वो बदल गया। अब खुदा के हुक्मों को उसने दिल से स्वीकार करके उन हुक्मों को लोगों के लिए लेकर के आ रहा था। बहुत बहुत भारी वचन है, बहुत मकबूल जो कलाम है वो आपको आज बताया जा रहा है। उसका चेहरा बदल गया, और उसके चेहरे में से किरणें निकलने लगी। पढ़ेंगे क्या लिखा, तो उसका रूप बदल गया। 34 की 29, निर्गमन 34-29। फिर से मूसा खुदा के हुक्मों की तख्तियां लेकर के नीचे उतर रहा था, और चेहरे से रोशनी की किरणें जो है वो निकल रही थी, और लोग उसका चेहरा देख नहीं पा रहे थे। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, आगे बयान में लिखा हुआ है कि वो अपने आप को ढक के रखता। उससे जब खुदा के पास जाता था तो वो अपना चेहरा खुदा के सामने रखता था, लोगों के सामने उसने चेहरा करना बंद कर दिया। उसका चेहरा नूरानी चेहरा हो गया था, उसके चेहरे से नूर टपकने लग गया था, उसके चेहरे से जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं वैसे उसके मुख से किरणें निकलती। मिल गया पढ़े। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसके मुख से किरणें निकल रही थी, और लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप खुदा के हुक्मों को मानते हैं ना, तो खुदा आपसे कहता है, यदि तुम मेरे हुक्मों को मानकर उनका पालन करोगे तो मैं समय समय पर तुम्हारे लिए बारिश करूँगा। समय समय पर जब ज़रूरत होगी मैं बारिश करूँगा, समय समय पर मैं फसलें उगा दूँगा, समय समय पर मैं तुम्हारे लिए फलदार बूटे लगाऊँगा, वो आपको फल देने लगेंगे। और व्यवस्था की किताब में लिखा है 5वीं आयत में कि तुम मन पसंद रोटी खाया करोगे। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है जो कहती है कि तुम मन पसंद रोटी खाया करोगे, और जहाँ तुम बसे हुए हो, जहाँ पर रहते हो, वहाँ सदा के लिए बसे रहोगे। ये खुदा का कलाम है, खुदा की
पानी है। आखिरी आयत पे आ गया हूँ। जब मूसा सीने पहाड़ से नीचे उतरा और उन तख्तियों को ले करके उसने एक संदूक में रख दी, और जैसे खुदा ने हुक्म दिया वो आज भी उसी तरीके से रखी हुई है। पढ़ेंगे जरा कहाँ लिखा, व्यवस्था विवरण निकालेंगे 10 की 5, व्यवस्था विवरण 10 की 5। जल्दी से मैं पढ़ना चाहूँगा। पढ़े ठहरे। 10 की पहली आयत का खुदा ने मूसा से कहा एक लकड़ी का संदूक बना ले। अब मैं आपको वाचा का संदूक, 2-3 मिनट है मेरे पास। खुदा ने उससे कहा कि एक मेरी वाचा का संदूक बनाने। लोग पूछते हैं वाचा का संदूक क्या है, कहाँ है, किसने बनाया? यहाँ देखो, व्यवस्था विवरण 10 की पहली आयत का नीचे वाला हिस्सा लिखा हुआ है, लकड़ी का एक संदूक बना ले। तीसरी आयत, तब मूसा ने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया और उन पत्थर की तख्तियों को जो खुदा के हाथों से बनाई गई थी उनको उसमें रख दिया। पढ़ेंगी तीसरी आयत। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गए। तब मैं पर्वत से नीचे आया और उन तख्तियों को अपने बनाए हुए संदूक में मैंने धर दी। 5वीं आयत। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पटियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया। और खुदा के हुक्म के अनुसार अभी भी वहाँ रखी हुई है, ऐसा लिखा हुआ नीचे वाला। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वह वहीं रखी हुई है। ये खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है, और खुदा ने सबको आशीर्वाद दिया और जैसा कि आज तक है। आप लोग नोट करें, व्यवस्था विवरण का 10वां चैप्टर में पढ़ रहा था आपके सामने। अपने घर जाकर के इसको फिर से एक बार देखिएगा, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। तो खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत आशीष दे। आज मैं इस तख्तियों वाले चैप्टर को यहीं पर बंद करूँगा। कल के लिए खुदा मालिक है, कल जो और कुछ नया देगा। तो आज यही बताना चाहता हूँ कि वाचा का संदूक अभी भी है, और उस वाचा के संदूक में वो दोनों तख्तियाँ जो हैं अभी भी खुदा के फजल से, खुदा के कर्म से अभी भी संभली हुई है। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आज के वचन और कलाम को मैं यहीं पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप। आमीन। यहाँ के बंद कर